Climate of Pakistan. Today we are going to discuss that. First, what is climate? Climate and what is weather? Weather and climate, they both are actually telling us the atmospheric condition. ठीक है, atmospheric condition, ठीक है, the atmospheric condition which we have to discuss in this chapter are actually temperature, wind, air pressure plus precipitation. These are the things which are included in our course. ठीक है, they both are the atmospheric condition, climate and weather, they both are the atmospheric condition, but one is for the smaller area, another one is for the larger area. Weather is the atmospheric condition of small area for short period of time, whereas climate is the atmospheric condition of a larger area for a longer period of time. ठीक है, this is the difference between weather and climate. Climate is the atmospheric condition of a larger area for a longer period of time, whereas the weather is a atmospheric condition of a smaller area for a short period of time. ठीक है, and the atmospheric condition which are included, which the things in which we are going to discuss in this chapter are temperature, wind, air pressure and the precipitation. Okay, now come to this one, climate, because we have to discuss now in detail. There are 4 climatic elements which are actually the same atmospheric condition, which we have to discuss in this chapter. ठीक है, the first one is temperature, second one is wind, third one is air pressure, and the fourth one is precipitation. Okay, now we are going to start with temperature. The first thing which we have to discuss, the first climatic element which we have to discuss, that is temperature. ठीक है, now what is temperature? The degree of hotness or coolness, degree of hotness and coolness is actually temperature. ठीक है, there are 5 factors which can affect the temperature of any area. अब इसको मैं लिख देती हूँ, factors and the degree, the units which we are using, degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin भी use होता है, but these are the 2 which are more important than this one. Now factors affecting temperature. There are different factors which can affect the temperature of any area, but only 5 are included in our course. We are going to discuss those 5 only. ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं 5 को करेंगे. The first factor, first let me write down the name, so because I am going to change the sequence. ठीक है, I am not going to follow the sequence. मैं 3 factors पहले कराने के बाद I will come to the climatic element, second and third, and then I will again come to the factors affecting temperature, and then we will come to the precipitation. The first factor which can affect the temperature of any area, that is latitudinal effect. Latitudinal influence. Second one is altitude. Third one is cloud cover. ठीक है, fourth
I'm using another color because after doing these three factors, we will come to the wind and then air pressure, and then we will come back to this factor. The fourth one is actually maritime influence. And the fifth one is continental influence. Now we are starting with the first factor. The first factor is actually the latitude. The first factor which can affect the temperature of any area is latitude. Now how the latitude affect the temperature of any area? Let me write first. Okay, then I will come to this description. Okay. Areas near to the equator and tropics receive direct sun rays, therefore experience high temperature and maximum day length. As sun is the source of light and heat. Okay? Because sun is the source of light and heat, therefore the areas which receive direct sun rays, that means they are on a shorter distance, they receive high temperature, they have more higher temperature, and the day length is also very long in those areas. Same like that, the areas which are away from tropics towards poles receive indirect sun rays, या angle of sun is more wider there, therefore experience low temperature and short days. Okay, let me draw up a picture for you guys. For example, this is the earth which I am going to draw here, okay, and this is the area equator, and these are the tropical areas, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay, that means (23.5° north and 23.5° south. These are the polar areas. Okay. The sun rays fall directly to these two areas, this area. Okay. Sun rays are direct till this area. That's why these areas experience high temperature. This area receive direct sun rays, therefore experience
हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्लस लॉन्गर डेज, यहाँ 12 घंटे का दिन होता है, ठीक है. एंड दीज एरियाज, द अबव वन, दिस एरिया, these areas receive indirect sun rays, ठीक है. Therefore experience low temperature, short days, ठीक है. आप देख रहे हो यहाँ पे मैं तुम लोग को दिखा देती हूँ ऐसे. सन यहाँ तक तो डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ से इसका एंगल इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, ठीक है. डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, एंगल भी वाइड हो रहा है. जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, वाइड हो रहा है, लेस हीट इज एबल टू रीच टू दीज पोल्स. जितना जितना ऊपर जा रहे हैं हम पोल्स की तरफ, द लेस हीट इज एबल टू अप्रोच दीज एरियाज, एंड देयरफॉर व्हाट हैपन, लो टेम्परेचर एक्सपीरियंस, डे लेंथ इज वेरी शॉर्ट, ठीक है. शॉर्टर डेज है क्योंकि सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एज वेल एज हीट. तो यहाँ पे जब सन रेज बहुत कम आएंगी तो डेफिनेटली लाइट भी कम होगी और डे भी टेम्परेचर भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है. दिस इज अबाउट द latitudinal effect. Now we are coming to the second point, the second effect, that is the altitude. The second factor is altitude. Altitude मतलब height या elevation as well, ठीक है. It's very simple. It's a very simple phenomena. Increase in height is equals to decrease in temperature. इसको मैं सिंपल कहती हूँ, उनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं है, कोई दुश्मनी चल रही है. एक इंक्रीज करता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है. हाइट विल इंक्रीज, द टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज. ऑन एन एवरेज, ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर will drop with every 1000 meter increase in height, ठीक है. जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है. अच्छा, फॉर द हाइट सी लेवल इज एक्चुअली द जीरो, ठीक है. हर किसी के मेजरमेंट के लिए मैं जीरो चाहिए था. आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल. इस तरह के कोई क्वेश्चन आते नहीं है, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग. दिस इज अ सी लेवल, ठीक है. अगर टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, सेल्सियस, एंड आफ्टर 1000 मीटर, एट द हाइट ऑफ 1000 मीटर, ये 10,000 ये जो है ड्रॉप हो जाएगा 6.5. एज वी नो दैट ऑन एवरेज 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल ड्रॉप विद एवरी 1000 मीटर इंक्रीज इन हाइट. मैं अब 1000 मीटर मैंने अगर इंक्रीज किए हाइट, तो ये 10 की जगह ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6.5, दैट विल बी 3.5 डिग्री सेल्सियस. सेम लाइक दैट मैं फर्दर 1000 जाऊंगी तो ये मजीद 6.5 इसमें से ड्रॉप हो जाएगा, देन दैट एरिया इज गोइंग टू रिसीव -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सी लेवल इज एक्चुअली द जीरो फॉर दिस हाइट, ठीक. जो भी आपका हाइट है, 1000 मीटर टेम्परेचर है सी लेवल पे, जितना आप 1000 मीटर ऊपर जाते जाओगे उसमें 6.5 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज डिक्रीज होता है. बट देयर माइट बी अ चेंजेस, ठीक है, बिकॉज देयर नंबर ऑफ फैक्टर विच डिफाइन द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया. मैंने सिर्फ 5 डिस्कस करूंगी बिकॉज दीज 5 आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स. दे आर मोर देन देम, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस. These are enough to define the temperature of any area, but other factors can also impact a lot in the temperature, but these are also very, very important. Is that clear? Now come to this one, third factor. Now the third factor is cloud cover. ठीक है, cloud cover क्या है? Normal condition में क्या होता है? ठीक है, ये suppose this is earth, ठीक है, और यहाँ पे है sun. This is a normal condition first. Sun rays है,
ये नॉर्मल कंडीशन में इसने क्या किया, सन रेज आई यहाँ पे, इट हीट अप द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम। ये डे टाइम में हमारे पास जो है डे में इसने क्या किया, टेम्परेचर दिया, इट गेन द टेम्परेचर एंड डे बिकम वार्मर। ठीक है, अब क्या हुआ, रात में क्या हुआ, जितनी हीट एनर्जी थी इसमें एब्जॉर्ब की हुई थी ये सारी की सारी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब ये नाइट कंडीशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नाइट, और नाइट में क्या हुआ, तो टेम्परेचर चला गया, तो टेम्परेचर क्या होगा, लो, इट विल ड्रॉप, टेम्परेचर इज गोइंग टू डिक्रीज नाइट के अंदर, बिकॉज ऑल दैट टेम्परेचर इज मूव बैक टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब ये रेडिएट हो चुका है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। अब नॉर्मल कंडीशन नंबर 1 बता रही हूं मैं। ठीक है, लेट मी मार्क द एरियाज। abnormal condition number 1, this is normal, and abnormal condition नंबर 2। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ सन है डे में, दिस इज डे टाइम, ठीक है, और ये है हमारी, यहाँ पे भी सन है, इसको मैं भी अलग कर देती हूँ। ओके, नाउ लेट मी मेक सम अर्थ। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज द अर्थ, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब डे कंडीशन है तो सन रेज आती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सुबह में क्लाउड बन गए, इधर यहाँ पे हुआ क्लाउड फॉर्म हो गए, दीज आर द क्लाउड्स। ठीक है, अब क्या है, क्लाउड एक्ट लाइक अ प्रिज्म। अब जब यहाँ पे हीट एनर्जी आती है तो दे आर नॉट लेटिंग दिस हीट एनर्जी टू रीच टू द अर्थ, दे आर रिफ्लेक्टिंग इट बैक टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको एटमॉस्फेयर में वापस बाउंस करके भेज देते हैं, ये वापस नहीं आती, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा बहुत, तो जब यहाँ हीट एनर्जी आती ही नहीं है तो क्या होता है, ये वाले डेज क्या होते हैं, डे टाइम है ये, दिस इज अ डे टाइम कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर टेम्परेचर क्या होता है ऐसे डेज में, लो टेम्परेचर एज वेल एज लेस लाइट। ठीक है, क्लाउडी डेज जो होते हैं हमारे, जिसमें लाइट बहुत कम होती है, डार्कनेस थोड़ी ज्यादा होती है, जितना ज्यादा क्लाउड ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा डार्क होती है। थोड़ी बहुत हीट एनर्जी आती है, सनरेज आती है, बिकॉज देर इज अ होल इन द पॉकेट्स इन द क्लाउड एज वेल, तो वो उनके बीच से आती जरूर है लेकिन बहुत कम। मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी विल गो बैक टू दिस वन, दिस इज अ डे टाइम कंडीशन। सेकेंड एबनॉर्मल कंडीशन नाइट पे होती है। अब इन कंडीशन के अंदर अब रात में अगर ये क्लाउड इन केस हट जाता है, रिमूव हो जाता है, तब जितनी हीट एनर्जी, जो थोड़ी बहुत भी हीट एनर्जी आई है, दैट इज अगेन गोइंग बैक टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो फर्दर रात मजीद ठंडी हो जाएगी, दैट विल बी मोर कोल्डर नाउ, बट इन, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कंडीशन नंबर 1 विच इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द डे टाइम। नाउ कम टू दिस वन, कंडीशन नंबर 2 विच इज एक्सपीरियंस एट नाइट। ठीक है, दिस इज एट नाइट टाइम कंडीशन। ठीक है, अब क्या है, दिन में तो सन रेज आ गई, ठीक, सन ने सारी हीट एनर्जी दे दी दिन के अंदर। अगेन लेट मी ड्रॉ द अर्थ, सारी की सारी हीट एनर्जी अर्थ पे आ चुकी है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर हाई हो चुका है। नाउ जब इसको वापस जाना था इन द इवनिंग या एट नाइट, द क्लाउड्स फॉर्म। अब क्लाउड में जब बन गए, व्हाट हैपन, अब हीट एनर्जी वापस जा रही थी, ये जा नहीं सकेगी, दैट विल बी ट्रैप बाय, बिकॉज इट दे एक्ट लाइक अ प्रिज्म, तो वो वहीं पर ट्रैप हो जाएगी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। इट विल बी ट्रैप इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट विल बी ट्रैप इन द एटमॉस्फेयर। सो इन डेज में रातें क्या होंगी, हॉट नाइट्स होंगी, या सेम डे टेम्परेचर will be experienced at night as well। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हीट एनर्जी ट्रैप हो गई है, थोड़ी बहुत तो वहां पे रिमूव कर जाएगी, बिकॉज देर आर क्लाउड्स पॉकेट्स इन द क्लाउड, बट मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी विल बी ट्रैप ओवर हियर, दैट इज नॉट एबल टू गो बैक टू द एटमॉस्फेयर। दिस इज व्हाट हैपन इन द क्लाउड कवर। ठीक है, रात में
क्लाउड डेवलप हुए, तो जब वापस उसको एटमॉस्फेयर में जाना था, एट दैट टाइम द हीट एनर्जी विल बी ट्रैप. नाउ वी आर डन विद द 3 क्लाइमेटिक एलिमेंट्स. ठीक है, मैंने अभी कहा था, सॉरी, 3 फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया. एज आई टोल्ड यू गाइज दैट आफ्टर 3 आई विल कम टू द सेकंड क्लाइमेटिक एलिमेंट एंड देन थर्ड क्लाइमेटिक एलिमेंट. Once we will understand these 2 climatic elements, then I will come back to the 4th and 5th factors affecting temperature. So our concept will be more clear and the things will be more easier for us to understand. So I am coming to the climatic element number 2 and 3. ठीक है, climatic element. ठीक है, मैं इस पे आ रही हूं और ये है हमारा क्लाइमेटिक एलिमेंट नंबर 2, दैट इज विंड. अब विंड होती क्या है? ठीक है, तुम लोगों में बहुत लोगों को पता भी होगा विंड क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे लिख रही हूं व्हाट इज विंड. विंड इज अ मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव या ब्लो from high air pressure areas to low air pressure areas, or from cooler areas to warmer areas. Okay, from cooler to warmer areas, ये हो गया wind. ठीक है, wind is a moving air which normally move from high air pressure areas to low air pressure areas or from cooler to warmer areas. ये हमारी हो गई wind. अब हमें पता चलाना है कि भाई एयर क्या होती है. हम कह तो रहे हैं दैट इज अ मूविंग एयर, बट व्हाट इज एयर? ठीक है, एयर क्या है? इट्स एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स and water vapors. This is air. ठीक है, we are done with this. Now हमें पहले एयर प्रेशर को we have to come to the third climatic element, but before that we must know कि प्रेशर क्या होता है. ठीक है, जब हमें प्रेशर पता चल जाएगा तो it will be easier for us to understand कि एयर प्रेशर क्या होता है. So प्रेशर क्या होता है? It's actually force per unit एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है, तो अब मुझे पता चलाना है थर्ड क्लाइमेटिक एलिमेंट. व्हाट इज थर्ड क्लाइमेटिक एलिमेंट? दैट इज एयर प्रेशर. ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है? दैट इज फोर्स exerted by air on a unit area. This is called air pressure. ठीक है, this is the air pressure. The air pressure exerted by pressure exerted by air on a unit area is called the air pressure. I hope the second and the third climate element now clear. एयर क्या था? थर्ड सेकेंड है विंड. विंड इज द मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज और कूलर टू वार्मर एरियाज. ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट. फिर उसके बाद आता है एयर प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन अ यूनिट एरिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड द एयर प्रेशर. ठीक है, अब हम सबसे पहले इक्वेशन 2 ड्राइव करेंगे और हमें फाइंड आउट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. Temperature and air pressure. Now first condition जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is when the temperature is high
temperature, that means hot condition या warm condition. ठीक है, when the temperature is high या warm, what happen in that condition, जो काइनेटिक एनर्जी है ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन, द काइनेटिक एनर्जी, के एनर्जी जिसको कहते हैं, ऑफ द एयर बिकम्स हाई. ठीक है, दैट मीन्स एयर बिकम एनर्जेटिक, दैट मीन्स अनस्टेबल. इसमें इतनी एनर्जी आती है, वो कहती है मुझे काम बताओ मैं क्या करूं. ठीक है, एयर बिकम अनस्टेबल, और अनस्टेबल को हम कंसिडर करते हैं एज अ लाइटर विंड. ठीक है, दैट मीन्स एयर बिकम लाइट एज वेल, बिकॉज वार्म जितना आप करोगे एयर को, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. इट कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल. इट कैन डू मोर वर्क and easily they can do, and it become very light. And we know that when air become light, या things with the lighter things cannot stay at the ground, they will move. ठीक है, they start moving, unstable हो जाएगी. So that means air will move. अब air will move कहाँ करेगी? upward. upward से मेरा मतलब क्या है? towards atmosphere. ठीक है, if the air will move towards the atmosphere, that means there is no air at the ground, so the air pressure at the ground will be low, क्योंकि वहां तो एयर है ही नहीं कि वो प्रेशर एग्जैक्ट करे. ठीक है, so the air pressure at the ground will be low. The equation which we derive over here is that when the temperature is high, या हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स हॉट या वार्म कंडीशन इज इक्वल्स टू लो एयर प्रेशर. जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा? दैट विल बी लो. द कंडीशन नंबर 1, द फर्स्ट इक्वेशन वी ड्राइव दिस. नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन. हम अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाते हैं. ठीक है, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज दैट we have low temperature. Low temperature, that means cool या cold conditions. ठीक है, when the temperature will be low, what happen? Okay, when the temperature will be low, what happen? The kinetic energy, first let me do this. The kinetic energy, K energy, which is, ठीक है, kinetic energy of the air will decrease. ठीक है, जब उसकी एनर्जी कम हो गई तो फिर हमारी भी जब एनर्जी कम हो जाती है तो हम सो जाते हैं, स्लीपिंग वाली कंडीशन हो जाती है. वी डोंट वांट टू मूव, वी वांट टू स्टे एट वन प्लेस. तो अन एयर बिकम लेजी. ठीक है, दैट मीन्स स्टेबल, इट डोंट वांट टू मूव. यहाँ पे दैट मीन्स हैवी, उसने इतना खाना खा लिया है कि अब उसको दिल नहीं कर रहा है हिलने को. ठीक है, इट हैज दैट मच लोड, इट इज नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग. सो एयर बिकम स्टेबल. ठीक है, स्टेबल, that means air will not move, stay at one place. ठीक है, stay at one place या stay at ground. ठीक है, जब वो stay करती है at ground, ठीक है, तो जब वो stay कर रही है, will not move. So what do you think, what will be the air pressure? That means the air will be more air, so the pressure will be more in that condition. So air pressure will be more या high at the
ग्राउंड. ठीक है, when the temperature is low, ठीक है, the kinetic energy of the air becomes very low. It don't want to move. It will stay. It becomes very heavy. When it will not move, it will stay at the ground. Definitely, the temperature, it will exert more pressure at the ground thing. So air pressure becomes very high in that condition. तो हमने जो सेकेंड इक्वेशन जो ड्राइव की है वो हमने ये ड्राइव की है कि जब टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर, that means cool या cold conditions is equals to high air pressure. ठीक है, फिर अगर विंड की अगर तुम लोगों को डेफिनेशन याद हो, हमने पहले तो रिलेशनशिप ड्राइव कर दिया है कि जब टेम्परेचर का हाई होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, और टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा. अगेन हमें ये पता चल रहा है they are not the friends, they are the enemies, they work indirectly. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है इनका. जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, जब प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर लो होगा. ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, high temperature low air pressure. This is what we have actually identified. This is the relationship which we have identified. अगर विंड की डेफिनेशन हम लोगों को याद हो तो विंड में मैंने कहा था विंड इज द मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर एरियाज टू लो एयर प्रेशर एरियाज. हाई एयर प्रेशर एरियाज से लो एयर प्रेशर एरिया में, ठीक है, कूलर टू वार्मर एरियाज. दैट मीन्स इट मीन्स द सेम. जो जहां हाई प्रेशर एरियाज होते हैं दे आर एक्चुअली द कूलर एरियाज, एंड वेयर द लो प्रेशर एरिया इज दैट दोज आर एक्चुअली द हॉट या वार्म एरियाज. ठीक है, तो हमारा वो कहानी हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द विंड, दैट इज क्लियर नाउ. Now we are going to discuss about the third. We are done with the second and third climatic element. Now again we are coming back to the factors affecting temperature. ठीक है, we are coming back to the factors affecting temperature. हम लोगों को अब दो factors discuss करने हैं, the fourth and the fifth one. Fourth one maritime influence. And the fifth one, continental influence. We are done with the previous one. Now, the fourth factor was maritime influence. This is the influence of water on the temperature of the surrounding area. ठीक है? Influence of water bodies कह लो, like river, ocean, sea, etc. ठीक है, all the water bodies are affecting by the way, but जितनी बड़ी बॉडी होगी, वाटर बॉडी होगी, उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा, etc. on the temperature of surrounding areas. Okay. ठीक है, water, when there are two different land bodies, one which suppose land and one is water, they act in a different way towards the heat energy. ठीक है, water takes more time to react to the heat energy compared to the land. ठीक है, land immediately react करती है towards the heat energy while the water takes time. ठीक है, water land take 1 minute, then water will take 5 minutes to react to that heat energy. ठीक है, दैट्स द रीजन सुबह जब सन निकलता है, द सोर्स ऑफ हीट व्हेन इट कम्स, लैंड इमीडिएटली गेन द टेम्परेचर, वो हमें एकदम से गर्म हो जाती है. ठीक है, जबकि वाटर जो है वो सुबह में अपनी उसके पहले मॉलिक्यूल्स पहले एनर्जी गेन करते हैं, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इतना टाइम हो जाता है कि वो इवनिंग शुरू हो जाती है. तो थ्रू आउट द डे द वाटर इज गोइंग टू बी कूलर, बट इन द इवनिंग इट स्टार्ट गेनिंग द टेम्परेचर, इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द हीट एनर्जी विच इट गेन ड्यूरिंग द डे टाइम. तो वो शाम में गर्म होना शुरू होता है, रात में गर्म रहता है, और वापस सुबह वाटर बॉडी ठंडी हो जाती है. ठीक है, इसको सिंपल याद करने का तरीका ये है कि लैंड, सन है तो लैंड तो गर्म है, हाई टेम्परेचर है, वाटर ठंडा है. सन सोर्स ऑफ हीट नहीं है तो वाटर, लैंड ठंडा हो जाएगा, वाटर गर्म हो जाएगा. लैंड की और सन की तो दोस्ती है, लैंड एंड वाटर की कोई जो है नाराजगी है. वो दोनों एनिमीज हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम नहीं करते, अपोजिट में काम करते हैं. ठीक है, उनके यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत है, एक एक करेगा तो वो दूसरा उससे अलग करेगा काम. ठीक है, अलग अलग चलेंगे ये. ठीक है.
दैट्स द थिंग. अब ये होता क्यों है, इसकी रीजन ये है, द लैंड इज एक्चुअली अ सॉलिड बॉडी, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयरफॉर हीट एनर्जी ट्रेवल इमीडिएटली, whereas the water is a liquid one. The heat molecules are not tightly packed with each other. They are connected but not connected very tightly. They have a lot of space. Therefore, heat energy takes time to travel from one molecule to another molecule. That's the reason it takes more time to react to the heat energy. As you can also experience when we boil the milk, it needs time. जबकि हमारा जो पॉट है वो इमीडिएटली हीट एनर्जी गेन कर लेता है बिकॉज वो सॉलिड बॉडी है. बट लिक्विड बॉडी टेक्स टाइम. फर्स्ट लेयर नीड ऑफ मॉलिक्यूल बस गेन द टेम्परेचर, देन कम्स टू द सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, देन फोर्थ लेयर. व्हेन ऑल द वाटर मिल्क मॉलिक्यूल्स गेन द टेम्परेचर, देन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. इससे पहले वो गर्म नहीं होता. ठीक है, दैट्स द थिंग इन दिस केस. अब अगर ये समझ में आ गया है तो अब मैं तुम लोग को एक पिक्चर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन. दिस इज अ लैंड एरिया, दिस इज अ सी. ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को बताया था कंडीशन यहाँ पे, इट्स अ डे टाइम. बाय द वे ये डे टाइम है. इसकी मैं पिक्चर का एरिया रिस्ट्रिक्ट करें. ठीक है, डे टाइम है. यहाँ पे डे टाइम में सन आ गया है, दैट मीन्स देयर मस्ट बी अ सन. ये यू है बेटे, आई एम रियली सॉरी. ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे लैंड पे टेम्परेचर, मैंने कहा था लैंड एंड वाटर की सन की दोस्ती है, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे इस कंडीशन में, हाई टेम्परेचर. इट विल इमीडिएटली रिफ्लेक्ट टू द टेम्परेचर. जबकि वाटर की मैंने कहा था दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है. इट विल टेक टाइम टू रिएक्ट टू दिस हीट एनर्जी. तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर. ठीक है, ये पूरा दिन गर्म ठंडा रहेगा. ठीक है, लो टेम्परेचर एक्सपीरियंस होगा. वी नो व्हेन द टेम्परेचर इज हाई द प्रेशर विल बी लो. अपोजिट में काम करते हैं, इनकी भी दुश्मनी है. लो एयर प्रेशर होगा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे जब लो टेम्परेचर है तो प्रेशर विल बी हाई, हाई एयर प्रेशर एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे. सो वी नो द विंड्स. व्हाट इज विंड? अब विंड कहां से कहां मूव करेगी? विंड इज अ मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. दिस इज अ हाई प्रेशर एरिया एंड दिस इज अ लो प्रेशर एरिया. तो ये विंड यहां से सी से लैंड की तरफ आएगी. सी ब्रीज. ठीक है, दिस इज सी ब्रीज. अब क्या है, दिस विंड इज कूलर वन एंड दिस एरिया इज वार्मर वन. ये कूल विंड आके इसका टेम्परेचर ड्रॉप कर देगी. ठीक है, इसको ड्रॉप करेगी, ये ठंडा हो जाएगा. ठीक, अब ठंडा हो गया. ठीक है, लेकिन खुद इसने गेन कर ली हीट एनर्जी, इट बिकम वार्म. ठीक है, ये यहां तक रुकता नहीं है, हर थोड़ी देर के बाद विंड आती है, इसको ठंडा करती रहती है. इसकी एग्जांपल ये है कि मैं पानी बॉईल करने के लिए रख रही हूँ और मेरा बर्नर ऑन है, बट हर थोड़ी देर के बाद मैं उसमें आइस क्यूब डालती हूँ. तो व्हाट हैपेंड, द वाटर इज नॉट गोइंग टू बॉईल बिकॉज दैट आइस क्यूब कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग इट्स टेम्परेचर. हर थोड़ी देर के बाद उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर रही है. खुद तो मेल्ट हो रही है लेकिन उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप कर रही है. रिजल्टेंट द वाटर इज नॉट गोइंग टू बॉईल. कंटिन्यूअसली उसका टेम्परेचर मॉडरेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ इट. यहाँ पे भी क्या है, सन अपने टेम्परेचर दे रहा है, हाई कर रहा है, बट ये दिस कूल विंड कंटिन्यूअसली ड्रॉपिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ दिस लैंड. तो रिजल्टेंट क्या हुआ, मॉडरेट टेम्परेचर एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पे. लेकिन ये यहाँ तक कहा स्टोरी रुक नहीं जाती. यहाँ आने के बाद इसने इस विंड ने क्या किया, टेम्परेचर गेन कर लिया बिकॉज दिस एरिया वॉज वार्मर. तो अब वार्म विंड्स कैन नॉट स्टे एट द ग्राउंड, वो ऊपर जाएंगी. ठीक है, ऊपर गई एटमॉस्फेयर में. विद द इंक्रीज इन हाइट देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, वी डिस्कस दैट एज वेल. अब ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया दैट मीन्स दे बिकम वेरी हैवी. और हमने कहा था हैवी थिंग्स तो ऊपर रुक ही नहीं सकती, दैट हैज टू कम डाउन. अब हैवी एयर तो नीचे आएगी. अब यहाँ वाला एरिया तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है. दिस एरिया इज नाउ एम्प्टी. नाउ दिस विल कम टू दिस साइड. फिर अगेन ये ठंडी हवा इस तरह जाएगी. दिस साइकिल विल कंटिन्यू थ्रू आउट द डे. ठीक है, एंड दैट्स टू रिजल्ट मॉडरेट टेम्परेचर will experience in coastal area. This due to continuous mixing of cold wind towards this warmer area. ठीक है, ये because of ये होता क्यों है, why different temperature experience, because land and water are two different bodies. ठीक है, they react in a different way toward heat energy. One immediately react to heat energy, the another one will take time. ठीक है, that's the reason they have different air pressure. When the different air pressure will develop, the different temperatures will be experienced. Different temperature will be experienced, different air pressure will develop, which result in the movement of air. The winds start blowing from one to another area, from high to low pressure area.
the cooled wind will come to the hotter area, it will drop down the temperature. ठीक है, therefore that area is not going to experience extreme temperature, high temperature इस condition में experience नहीं होता है फिर. ठीक है, now come to the second condition, night के अंदर. रात में क्या होता है, ये इसी maritime को ही कर रहे हैं मे बी. This is again the land and this is sea. ठीक है, अब रात में क्या होता है, टेम्परेचर यहां क्या है, रात में सन नहीं है, लैंड है एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर. ठीक है, लो टेम्परेचर होगा विच रिजल्टेंट मीन्स हाई एयर प्रेशर यहां पे एक्सपीरियंस होगा. मैंने कहा था अपोजिट में काम करते हैं तो हाई टेम्परेचर एयर प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस. वेयर एज सी रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट में काम करता है, ये रात को एक्टिव होता है, इसका टेम्परेचर रात में हाई टेम्परेचर होगा. यहाँ पे when the temperature will be high, the pressure will be low air pressure experience होगा. Now we know the wind is a moving air which normally move from high pressure areas to low pressure areas. तो यहाँ high pressure है land पे, तो the wind will come from the land. ठीक है, ये कहलाती हैं land breezes. ठीक है, अब दिस साइकिल विल अगेन कंटिन्यू वही सेम वे में जो मैंने पहले डिस्कस किया था. ठीक है, ओवर हियर इट गेन द टेम्परेचर और ये गर्म हो गई, फिर गर्म हवा नीचे नहीं रोक सकती, इट विल मूव अपवर्ड, एटमॉस्फेयर में जाएगी, इट ड्रॉप डाउन द टेम्परेचर, बिकम हेवी एंड देन इट अगेन कम टू दिस एरिया बिकॉज देयर इज नो स्पेस. दिस साइकिल कंटिन्यू थ्रू आउट द नाइट टाइम. ठीक है, दिस इज द रीजन ऑल द कोस्टल एरिया डज नॉट एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर्स चाहे एंड लो टेम्परेचर्स. एक्सट्रीम कंडीशंस कैन नॉट बी एक्सपीरियंस, मॉडरेट रहता है. कुछ दिन होते हैं जरूर है अब कराची में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वरना कराची में ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत सर्दी होती है. एंड दिस इज कराची इज ऑल्सो अ कोस्टल एरिया. नाउ वी आर डन विद दिस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस. वी आर गोइंग टू द फिफ्थ क्लाइमेट फैक्टर विच कैन इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया, दैट इज कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस. Continental influence is actually influence of या effect of land area, because continental means land mass, land area on the temperature of surrounding lands. ठीक है, दे ऑल आर एक्चुअली सराउंडेड बाय द लैंड्स. ठीक है, one area is land, another area is land, all of the land areas. That means now the nature of body is actually the same. When the nature of the body is same, they react in a same way. अगर सन है तो दोनों लैंड एरियाज हैं या तीनों लैंड एरियाज है, तीनों गर्म हो जाएंगे. अगर ठीक है, तो इस वजह से जब तीनों टेम्परेचर हाई कर लेंगे तो प्रेशर भी उनमें सेम रहेगा. द सेम प्रेशर विल बी एक्सपीरियंस. जब टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा. जब सेम प्रेशर होगा तो विंड तो मूव करेंगी ही नहीं. फॉर द विंड मूवमेंट, वी नीड टू डिफरेंट प्रेशर्स विच आर नॉट एक्सपीरियंस इन दैट कंडीशन. तो यहाँ पे क्या होगा, तो गर्मी है तो बहुत गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी होगा. यहाँ पे कोई कट डाउन करने के लिए नहीं है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एक्सपीरियंस इन दैट कंडीशन. ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा इसको, ठीक है, जैसे पंजाब है वहां गर्मियों में भी गर्मी रहती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है. तो इसकी रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस. ठीक है, वहां पे हवा इतनी ज्यादा नहीं चल रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लैंड 1, दिस इज लैंड 2. दे माइट बी अ लैंड 1 ए और ये बी. दे बोथ आर लैंड, बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है. सन आया, दे बोथ गेन द टेम्परेचर. ये भी हाई टेम्परेचर है, ये भी हाई टेम्परेचर है. ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम राइटिंग टेम्प जस्ट टू सेव माई टाइम. टेम्परेचर लिखना, टेम्प इज नॉट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. ठीक है, 10 डिग्री सब सपोज यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ हो सकता है 32 डिग्री सेल्सियस होगा. ठीक है, जब टेम्परेचर हाई है तो इट विल रिजल्ट इन द सेम प्रेशर, लो प्रेशर होगा, एयर प्रेशर. यहाँ पे भी लो एयर प्रेशर होगा. अब result in high temperature पे low air pressure होगा. This wind is not going to blow from one to another area because they are experiencing same temperatures. ठीक है, I hope it is clear. अब हम लोगों ने तमाम फैक्टर्स कर लिए which can affect the temperature of any area. We discussed first climatic element, that is temperature. We discussed the second climatic element, that is wind. We discussed the third climatic element, that was precipitation. That was air pressure. Now we are coming to the fourth climatic element, that is precipitation.
climatic element number 4, that is precipitation. ठीक है, precipitation, there are 4 sources of rain, 5 sources of rain which are included, which bring the rain to Pakistan. उनके नाम लिख रही हूं पहले. The first one, monsoon. Second one, western depression. Third one is convectional currents. Fourth one is relief rainfall. And the fifth one is tropical cyclones. Okay, now we are going to discuss the first source of rain which bring the rain to Pakistan, that is monsoon. ठीक है, it's actually an Arabic word which means season. ठीक है, therefore it blow in both of the seasons. ये 2 seasons में आती है. It bring the rain in 2 of the seasons. ठीक है, one is in summer and another one is in winter. ठीक है, summer, it bring the rain in the summer as well as in winter season. ठीक है, in summer it originate from 2 of the areas. एक आता है ये अरेबियन सी से. Second one, it coming from the Bay of Bengal area. ठीक है, it is coming to these 2 different areas and it has different names as well. We'll tell you how to memorize this name or how to actually remember this one. These things वो मैं करवाती हूँ. Now we have to discuss this, how these wind bring the rainfall. Let me draw the map of Pakistan. I'm sorry, I'm not going to draw very good because I was good on board, but यहाँ पे पता नहीं. Let's try कि ड्रॉ होता है कि नहीं होता है. ठीक है, ये वाला है बे ऑफ बंगाल का एरिया. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ वेरी वेल. एक तो वैसे भी मेरे शायद हाथ में पेन शुरू हो गया. दीज आर द माउंटेन्स. दिस इज बे ऑफ बंगाल का एरिया. दिस इज अरेबियन सी. ठीक है, देयर आर द माउंटेन्स अगेन. These are western mountains. This is Himalayas. Okay, I'm giving you the situation number 1. The situation number 1 is that this is summer season. ठीक है, समर इज जस्ट लाइक अ डे. जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था डे में एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही समर होता है. समर में व्हाट हैपन, मैंने कहा था समर इज लाइक अ डे. तो डे में लैंड रिएक्टिंग इन अ सेम वे वाइल सो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सन का और लैंड का, वेयर इज द वाटर हैविंग अ इनवर्स रिलेशनशिप. तो समर है तो लैंड पे टेम्परेचर होगा हाई. इट विल एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर. जबकि प्रेशर क्या होगा रिजल्टेंट, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर हो जाएगा लो एयर प्रेशर. ठीक है, दिस रिजल्ट इन दिस वन. whereas on the sea the temperature will be low. ठीक है, लो टेम्परेचर और रिजल्टेंट क्या होगा हाई एयर प्रेशर. जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है हाई एयर प्रेशर. यहां पे भी ऐसा ही होगा, लो टेम्परेचर है. ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा हाई एयर प्रेशर. अब हमने डिस्कस किया था विंड इज अ मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. तो यहाँ पे विंड मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज. बट यहाँ सिचुएशन ये है कि जो विंड्स हैं
जो अरेबियन सीज जो ओरिजिनेट होती हैं वो वीक विंड्स होती हैं, ठीक है। जो यहां से ओरिजिनेट होती हैं ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग कर दूं यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं वीक विंड्स कर दूं। तो ये याद रखना क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, ओशन करंट्स वगैरह हम नहीं पढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू गो फॉर द रीजंस। आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वीक विंड्स है और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। नाउ कम टू दिस, मैंने कहा था विंड इज अ मूविंग एयर विच नॉर्मली मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। नाउ द विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम दिस बे ऑफ बंगाल एंड मूव पैरेलल विद दिस हिमालयन रेंज। दिस कलर इज नॉट क्लियर, लेट मी चेंज द कलर, पिंक आई गेस इज बेटर, ठीक है। ये वहां से ओरिजिनेट होंगी एंड दे विल मूव पैरेलल विद द हिमालयन रेंज एंड आफ्टर क्रॉसिंग अ वेरी लार्ज एरिया दे विल एंटर इनटू पाकिस्तान। मेजरली यहाँ पे आती हैं, प्राइमरी विंड्स कम ओवर हियर, ये प्राइमरी है, ठीक है। ये सारी प्राइमरी हमारे इस एरिया में एंटर होती हैं, ठीक है। सम ऑफ द सेकेंडरीज ऑल्सो वो रीच टू दिस एरिया, यहाँ पे भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं आती, बट यहाँ पे कम आती है, ठीक है। Because they have to travel a very large area, first Bangladesh and larger part of India, when they enter in Pakistan, ठीक है, they drop most of their moisture, ठीक है। तो therefore they become very weak. This is the reason they cannot cross these western mountains. This is the area which is only going to receive this rainfall. आगे ये western mountains को cross नहीं कर पाती because Pakistan receive tailland. That means it has to cover a very huge area. It after and in that way. In that area they are actually already dropped most of their moisture, very less moisture left when they enter into Pakistan. That's because they become very weak, energy कम हो चुकी होती है और वो western mountains को cover नहीं कर पाती, and then resulted ये वाला half is not able to get this rainfall. Only this half, Indus, Sindh, Punjab and Sindh is only going to get this rainfall, ठीक है। ये मैंने बता दिया मेन विंड्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर मैंने कहा था सम ऑफ द वीक विंड्स ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबियन सी, तो कुछ विंड्स यहाँ से भी ओरिजिनेट होंगी एंड दे विल गिव द रेन फ्यू रेनी डेज टू दीज कोस्टल दीज एरियाज, ठीक है। लेकिन बहुत कम रेनफॉल एक्सपीरियंस होती है इन दैट कंडीशन। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब ये हमारा हो गया समर वाला। इसकी डेवलपमेंट पूछते हैं, ज्यादातर पूछते हैं बे ऑफ बंगाल की, तो इसकी डेवलपमेंट ऑलरेडी नोट्स में लिखी हुई है, मैं फिर भी बता देती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन हाई टेम्परेचर एक्सपीरियंस ऑन द लैंड एरिया विच रिजल्ट इन क्रिएटेड अ लो प्रेशर एरिया, whereas low temperature experience on the Bay of Bengal as well as the Arabian Sea, which result in created a high pressure area over here, ठीक है। When, as we know, the wind move from high pressure areas to low pressure area, therefore the strong winds or which develop on the Bay of Bengal, ठीक है, move parallel with the Himalayan range and after crossing a larger area enter into Pakistan, especially mainly to the northern Pakistan. As Pakistan receive tail end, therefore they are not able to cross these western mountains, ठीक है। So that's the reason only the eastern half of the country is going to receive this source of rainfall, ठीक है। Some of the अच्छा, अब ये Bay of Bengal का था तो यहाँ तक ही जाएगा, ठीक। अच्छा, इतना बता दिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आएगा इसके नाम कैसे देने, व्हाट्स द नेम ऑफ द सोर्स ऑफ रेनफॉल। अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, नाम के लिए भी मैं पहले बता दूं एंड देन आई विल कम टू द नॉर्दर्न विंटर विंड रेनफॉल, ठीक है। हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। दीज टू डायरेक्शंस वर्क इन द ऑपोजिट वे एंड देन वी हैव ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस। नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस होती हैं इनमें से हम लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग डायरेक्शन लेते हैं, स्टार्टिंग डायरेक्शन हम यहां से लेते हैं, ठीक। और ईस्ट वेस्ट से लेते हैं मूविंग डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है और कहां से स्टार्ट हो रही है। मैं यहां पे तुम लोगों के लिए कंपास बना भी देती हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नाउ दिस विंड विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अरेबियन सी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथ, नीचे से हो रही है, दैट मीन दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम साउथ। यू हैव टू पिक एनी वन फ्रॉम हियर। स्टार्टिंग पॉइंट हमने ले लिया, साउथ से ओरिजिनेट हो रही है और मूव किस डायरेक्शन में कर रही है, इस तरफ। इस तरफ क्या है, ईस्ट, तो हम एक यहां से ले लेंगे ईस्ट या वेस्ट में से, दैट इज ईस्ट। सो दीज आर कॉल्ड साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट मॉनसून winds. This is the another name of it, ठीक है। Now the winds which are originating from this area, Bay of Bengal, they are also starting from the south. तो हमारे पास ये तो आ गया साउथ, ठीक है। और मूव किस तरफ कर रही है, वेस्ट की तरफ, तो ये हो गया साउथ वेस्ट विंड्स, या इनको हम लिखेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स,
ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ कम टू द विंटर कंडीशन. विंटर में क्या होता है? लेट मी ड्रॉ इट विद. ओके, ठीक है. अब हमें वैसे उस तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ. दिस इज विंटर कंडीशन. ठीक है, विंटर टाइम. अब क्या है, विंटर में लैंड पे टेम्परेचर होता है लो, बिकॉज लैंड और सन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है. लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा? हाई. अब क्या है, जब यहाँ पे और जबकि वाटर क्या होगा, अपोजिट रिलेशनशिप है, तो यहाँ टेम्परेचर होगा हाई. हाई टेम्परेचर विच रिजल्टेंट इन लो एयर प्रेशर. ठीक है, ये लो एयर प्रेशर में होगा. अब विंड क्या करेंगी, दे विल मूव फ्रॉम हाई एयर प्रेशर एरिया टू द लो एयर प्रेशर एरिया. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी. ठीक है, अब दिस एरिया ऑल्सो एक्सपीरियंस लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो एयर प्रेशर, बट दिस एरिया इज सर्व टू दिस एरिया. ठीक है, बे ऑफ बंगाल को इंडिया सर्व कर देगा, बांग्लादेश सर्व कर देगा, तो दैट्स वाई ये यहाँ पे इसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है. लो प्रेशर एरिया ऑलवेज एक्ट लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, टू फॉर द हाई प्रेशर विंड्स. यहाँ वाली जो मैग्नेट है उसको ये वाली विंड्स, उसकी तरफ ये वाली विंड्स अट्रैक्टेड है, तो इसके लिए कोई अट्रैक्शन रही नहीं है वहां पे, इसके लिए अट्रैक्शन है यहाँ पे. दैट्स वाई इट विल मूव टुवर्ड दिस एरिया एंड दिस विल बी देयर डायरेक्शन. सो दिस दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट. ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स. ठीक है, ये इसकी हो गई. बिकॉज दीज आर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ लैंड एरिया, दैट मीन्स ड्राई बॉडी, देयरफॉर वेरी लेस रेनी डेज विल बी एक्सपीरियंस. ज्यादा रेनफॉल नहीं देते बिकॉज ड्राई एरिया में इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं हो रहा. यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हो रही थी, दे एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम अ वेट बॉडी, देयरफॉर दे कैरी लॉट ऑफ मॉइस्चर. दैट्स द रीजन दे कैन ब्रिंग मोर रेन. बट यहाँ पे क्योंकि लैंड एरिया ड्राई एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है, तो रेनफॉल इतना ज्यादा नहीं देंगी, कम रेनफॉल होगी, इतना ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी. ठीक है, देन कम टू वेस्टर्न. अच्छा, इसके अंदर पे 2-3 कंडीशंस आ जाती हैं. लेट मी डिस्कस दोस कंडीशन. यहाँ पे जो मॉनसून विंड्स हैं, ठीक है, इसमें पोस्ट कंडीशन है, प्री कंडीशन है. ठीक है, पोस्ट मॉनसून, प्री मॉनसून 2 कंडीशन होती है. प्री कंडीशन जब आपका टाइम से अर्ली आ जाता है. ठीक है, जब रेनफॉल कम्स अर्लियर देन इट्स टाइम पीरियड, देन इट मीन्स इट विल ब्रिंग मोर रेनफॉल. इट विल बी स्टेइंग फॉर more time period, so that means it will result in floods. Whereas when there will be a post condition, the rainfall will stay for a shorter period of time and result in there will be less rainfall, और rainfall भी फिर कम हो जाएगी वहां पे. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है, फिर वहां पे रेनफॉल कम हो जाएगी. दिस ऑल्सो हैविंग द प्रॉब्लम कि ये हैवी रेन शावर्स में रेन देती है. हैवी शावर्स में जब भी रेन देगी तो वो एब्जॉर्प्शन कम होगा, सरफेस रन ऑफ ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो वो फ्लो ज्यादा हो जाएगा और पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्रॉप्स को इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेंगे. द क्रॉप्स आर नॉट गोइंग टू गेट द बेनिफिट एंड दे कैन नॉट बी सपोर्टेड या कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ इट. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गया. फिर इसमें लॉन्ग ड्राई स्पेल है. ड्राई स्पेल क्या होता है, बीच में इंटरवल, जो रेनी टाइम पीरियड है 2 से 3 महीने का, दैट हैज टू दिस सोर्स हैज टू गिव द रेन थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड. बट मोस्ट व्हाट हैपन विद दिस सोर्स, ये शुरू के 10 दिन आती है, रेनफॉल देती है, एंड आफ्टर दैट इट विल नॉट गिव एनी रेन. ठीक है, या रेनी डेज विल नॉट बी एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दैट टाइम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड. सपोज 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए पूरी बारिश नहीं हुई, एंड आफ्टर दैट इन द एंडिंग इट अगेन स्टार्ट रेनिंग. ठीक है, तो ये है इसका लॉन्ग ड्राई स्पेल कंडीशन. दिस, और इसमें सीजनल रेनफॉल है, एक सीजन में मतलब एक एरिया को भी मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती, और विंटर के अंदर बहुत कम रेनफॉल है, तो दैट्स ऑल्सो द प्रॉब्लम विद दिस सोर्स. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द वेस्टर्न डिप्रेशन. यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ पहले वेस्टर्न डिप्रेशन के बारे में. द सेकेंड सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेन. ठीक है,
Western depression originate from Mediterranean Sea, bring rain in the winter season. ये विंटर सीजन में लेके आते हैं रेन. पाकिस्तान अगेन रिसीव द टेल एंड ऑफ इट, और ये आफ्टर क्रॉसिंग ईरान अफगानिस्तान इट एंटर इनटू पाकिस्तान. आई विल शो यू द पिक्चर. मैं मैप के थ्रू कराती हूँ उसको, मेरे पास वर्ल्ड मैप है, मैं वहां से दिखाती हूँ. विंटर सीजन में आती है, बट द गुड थिंग इज दैट इट कम्स इन लो शावर्स. ठीक है, लाइट शावर्स में आती है, लो शावर्स कह रही हूँ, लाइट शावर्स में आती है. देयरफॉर इट विल बी वेल एब्जॉर्ब और क्रॉप को बहुत सपोर्ट करती है. दूसरी अच्छी चीज क्या है, ये इट एक्चुअली कंटिन्यू थ्रू आउट इस टाइम पीरियड. दिसंबर से मार्च इसका टाइम पीरियड, और अपने टाइम पीरियड में कंटिन्यू रहती है. इट गेट्स रेन कंटिन्यूसली थ्रू आउट इट्स टाइम. दैट्स द गुड थिंग अबाउट दिस सोर्स ऑफ रेन. ठीक है, आई एम एंडिंग हियर.